Hey everyone, welcome back to my channel again. So in this video, we have to discuss about the trigonometric ratios, right? So as we discussed earlier about the trigonometry, so now moving towards a very new and very important topic, which we have to understand with so much of sense, with so much of presence. So just make your presence, everyone, and see trigonometric ratios, right? Now we will see the line trigonometric ratios. So trigonometric means we are doing something with the help of trigonometry only. And ratios, what is a ratio in terms of maths? Ratio होता क्या है maths की term में? When we are comparing two or more numbers, right? That means that is a ratio. Suppose I am saying there are three girls and four boys. So what is the ratio of girls to boys? So you will say, ma'am, 3:4. Or I am saying if there are 5 oranges and 6 apples. So what is the ratio of orange to apple? So you will say 5:6. If I am saying what is the ratio apple to orange, you will say, ma'am, 6:5. So that is the ratio when we are comparing two or more than two things. आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे जहां पे आपके फोर एंगल्स को कंपेयर किया जाता है. फोर एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन अ रेशियो लाइक 2:3:4:5. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रेशियो में सिर्फ आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो. यू आर कंपेयरिंग टू और मोर देन टू नंबर्स. ओके, सो बहुत ही अच्छा एग्जांपल एक क्वाड्रिलेटरल का होता है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल you are saying that you have four angles and four angles are in ratio, suppose like this ratio. Okay, so that is the meaning of ratio. Now moving towards the trigonometric ratio, so it is the ratio of the sides of right triangle. ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो हम राइट ट्राइंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्लास 10th में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इज बेस्ड ऑन राइट ट्राइंगल ओनली. लेकिन रेशियोज हमारे पूरे की पूरे डिपेंड करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पे. सो इफ यू विल सी दिस राइट एंगल ट्राइंगल, सो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा विल बी ए और इट विल बी सी. आप कोई भी एंगल ले सकते हो, आप ए भी ले सकते हो, सी भी ले सकते हो, दोनों ही एक्यूट एंगल हैं. अगर मैं एंगल सी की बात करती हूँ, फॉर एंगल सी द ऑपोजिट साइड विल बी ए बी and adjacent side is BC and hypotenuse is AP. Very much clear. Okay, so ये हम पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं. Now everyone, please understand the important things. Okay, now trigonometric ratios. Now when we are saying ratios and we are saying trigonometric ratios, so please see the video everyone first. आप देख पा रहे हैं बहुत सारी लाइंस जो हैं वो मूव कर रही हैं, ओके, टुवर्ड्स 360 डिग्री, राइट. कंप्लीट सर्कल के अंदर जो लाइंस हैं वो मूव कर रही हैं फ्रॉम 0 to 90 to 180 to 270 देन अगेन टू 0. इट मींस लाइंस आर रोटेटिंग. एंड when you are taking different angles based on anti clockwise, तो आपको एक बात समझ आती है कि आपका जो एंगल है वो आपका चेंज हो रहा है. सपोज एवरीबडी नो दिस इज 0 डिग्री. ओके, नाउ एवरीबडी नो दैट दिस इज 90 डिग्री. हाउ 90 डिग्री एंगल? दिस इज एवरीबडी नो दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन. ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स नेगेटिव होता है, ये वाई नेगेटिव होता है. हम इस पार्ट को 0 डिग्री मानते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. If we are moving anti-clockwise, the angles are positive. So 0, 90 degree, 180 degree, and 360 degree. Okay. But if we are moving clockwise, so 0 degree, then 90, then 180, and then 270, and then 360 like that. But अगर आप anti-clockwise ले रहे हो, तो things will be, angle will be positive. लेकिन अगर आप anti-clockwise ले रहे हो, so the things will be negative. Okay, negative हो जाती हैं. How? That we will see in the later videos. Now first we will focus on our trigonometric ratios, right? So everyone, if you will see the definition that it is the ratio of the two sides of right, क्योंकि आप यहाँ पे दो sides को ही compare करोगे, right? ठीक है. जैसे suppose अब सबसे बड़ी चीज है कि आपके जो ratios होते हैं वो 6 ratios होते हैं. You have 6 ratios
ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? यू हैव 6 रेशियोज। अब आप कहोगे मैम 6 ही क्यों होते हैं? एवरीवन टेक अ वेरी इजीएस्ट एग्जांपल। ठीक है, मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा एग्जांपल लेती हूं, और एग्जांपल इतना इजी है ना कि सपोज आपके पास 3 साइड्स हैं। ठीक है, 3 साइड्स हैं, या फिर आप कह लो आपके पास 3 सीट्स हैं, और आपको दो दो सीट्स को फिल करना है। तो आप कैसे कैसे कर सकते हो सकता है आप P के पास B को बिठा दें, ठीक है, या फिर हो सकता है आप P के पास H को बिठा दें। ठीक है, 2 केसेस। सेकंड, आप B के पास H को बिठा दें या फिर B के पास P को बिठा दें। 2 और केसेस हो गए। हो सकता है H के पास आप P को बिठा दें और H के साथ आप B को बिठा दें, डिपेंडिंग ऑन फर्स्ट कौन बैठ रहा है और सेकंड कौन है। ओके, सो इट मींस वी हैव 2 2 2, दैट मींस 6। अगर आप 3 चीजों को लेके अगर आप चीजें बनाना चाहोगे तो आपकी 6 चीजें बनेंगी आपकी। इज दैट क्लियर? ओके, सो सिमिलरली व्हेन वी हैव 3 साइड्स इन अ ट्राइंगल, जब आपके पास 3 साइड्स होती हैं तो आपके जो रेशियोज होते हैं वो भी आपके, ठीक है, 2 2 के पेयर में बनते हैं। तो ए बी के साथ बीसी भी आ सकता है, एसी भी आ सकता है, बीसी के साथ एबी भी आ सकता है, बीसी के साथ एसी भी आ सकता है, एसी के साथ एबी भी आ सकता है, और एसी के साथ बीसी भी आ सकता है। ठीक है, तो ये तो आपका आंसर हो गया कि हमारे 6 रेशियोज ही क्यों होते हैं। सो दैट इज द इजीएस्ट पार्ट। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट एवरीवन। ओके, अब कौन कौन, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे। पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि फंक्शंस ही क्या होते हैं। मैम फंक्शंस ही क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो means the ratio of the sides of a right angle triangle. Trigonometric functions, function is something, it's a relation. Function is a relation. Suppose I am saying x is equal to 2y, तो ये एक रिलेशन है कि जो x की वैल्यू है वो y पे डिपेंड कर रही है। कैसे? कि अगर जब आप y को कुछ पुट करोगे तभी आपका x आएगा। इफ y is equal to 1 then x is equal to 2। ठीक है, तो फंक्शन मीन्स इट इज अ relationship between one variable and the another variable. Suppose I am saying one of the trigonometric function, that is sine theta, that is equal to perpendicular upon hypotenuse, that is the first trigonometric ratio। लेकिन आप इसको फंक्शन बोलते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल को कंपेयर किया जा रहा है। ओके, 2 वेरिएबल को कंपेयर किया जा रहा है। ओके, अब उसमें से एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा, राइट? सो सिमिलरली वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपको पता है, दैट इज फर्स्ट वन इज द साइन, next one is the cosine, next is the tangent, next is the cotangent, then we have secant, then we have cosecant। जो आपका मम्मी ऑफ द रेशियो है ना, दैट इज द साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपका मम्मी है, दैट इज द साइन थीटा। साइन थीटा इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट? तो आपका अगर ये ट्राइंगल है और बी आपका 90 डिग्री है, ठीक है, और सी एंगल के हिसाब से अगर आप ले रहे हैं, सो व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर, दैट इज द ऑपोजिट साइड, दैट इज ए बी। और हाइपोटेन्यूज तो हर ट्राइंगल में सेम ही रहती है, बस चेंज क्या होता है आपका ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड होती है चेंज डिपेंडिंग अपॉन द एंगल, कि आप एंगल ए ले रहे हो या सी ले रहे हो। ठीक है, एक्यूट एंगल में से कौन सा एंगल ले रहे हो, बेसिकली दैट। सो दिस इज द मम्मी ऑफ द रेशियो, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू P upon H, that is AB by AC. Now the next papa of the trigonometric function, that is the cos theta, that is the base upon hypotenuse, and according to this triangle it is BC by AC. Is that clear everyone? So sin theta and cos theta, these are the mummy papa of trigonometric ratios. Third one is the tan theta, or we can say tangent। ठीक है, और अदर जो 3 रेशियोज है वो इन्हीं के रेसिप्रोकल हैं। सो सबसे पहले तो आपको नाम याद करने हैं, साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट। और इनकी शॉर्ट फॉर्म्स क्या है? वी हैव साइन, वी हैव कोसाइन, वी हैव टेन, वी हैव कॉट, वी हैव कॉसेक, एंड द लास्ट वन इज सेक थीटा। सो दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। स्टार्टिंग के जो 3 है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, मम्मी पापा एंड द बच्चा, और बाकी जो 3 है दे आर द रेसिप्रोकल ऑफ द अपर 3 ratios। ओके,
सो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। वो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे रेशियोज हैं, कैसे कैसे आप आगे हम बताएंगे आपको कि कैसे कैसे ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सो इट्स वेरी इजी। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट ओनली. Okay, so first I told you that mummy of the trigonometric ratio is sine theta. It means sine theta is the ratio of perpendicular upon hypotenuse. Then the papa of the trigonometric ratio is cos theta, that is b over h. Then the next trigonometric ratio is tan theta, which is the division of sine theta by cos theta. साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन एच, और कॉस थीटा क्या होता है, b अपॉन एच. सो h से h कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, p अपॉन b बचेगा. दैट इज दैट. अगर हम इनके रेसिप्रोकल्स की बात करते हैं तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉसेक थीटा, तो वो हो जाएगा h अपॉन p. कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक थीटा, वो क्या हो जाएगा आपका h अपॉन b. देन वी हैव tan रेसिप्रोकल इज कॉट थीटा, दैट इज b upon p. Okay, so these three are the mummy, papa and bacha, and these three are the reciprocal of mummy, papa and bacha. Okay, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हो गया, कॉस का रेसिप्रोकल सेक हो गया और टेन का रेसिप्रोकल कॉट हो गया. तो आपको ये याद रखना है, डू नॉट फॉरगेट दिस. इज दैट क्लियर एवरीवन? आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर. ओके, सो p by h, p by h and p by b. ओके, सो और इसको हिंदी में आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले भी बोलते हो. इससे आपको याद हो जाएगा कि पहला मम्मी है, दूसरा पापा है, तीसरा बच्चा है, और फिर इनके रेसिप्रोकल स्टार्ट हो जाते हैं h by p, h by b and b by p. दैट इज आपका कॉसेक, सेक और कॉट. ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ये भी एक चलता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं. अगर स्कूल में कुछ ऐसा बोला जाए तो मैंने भी आपको ये बता दिया है. इट्स वेरी वेरी इजी. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. तो फंक्शंस की हम बात कर रहे थे. फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन एक रिलेशन होते हैं. आप जब 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, सो वी लर्न अबाउट द रिलेशन एंड फंक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. जब आप सेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो रिलेशन फंक्शन की बात होगी वहां पे. सो फंक्शन जो होता है वो रिलेशन ही होता है. जैसे मैंने आपको एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल दिया, दैट x इज इक्वल टू 2y. जब तक आपको y की वैल्यू नहीं पता होगी आप x नहीं निकाल सकते. तो डिपेंडेंट कौन हुआ? आपका x जो है वो डिपेंडेंट हुआ, और जो y है वो इंडिपेंडेंट हुआ. क्योंकि y की तो आपको पता है, और y की जब पुट करोगे तभी आपकी x निकलेगी, तो x डिपेंडेंट हो गया ना y के ऊपर. तो एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा. राइट? ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो आपके ये होते हैं. अच्छा, सिर्फ साइन, सिर्फ कोसाइन, सिर्फ टेंजेंट, सिर्फ कोटेंजेंट, सिर्फ सेकेंड, सिर्फ कोसेकेंड, इनको फंक्शंस बोलते हैं. ये रेशियोज कब बनते हैं? जब इस साइन के अंदर हम थीटा लगा देते हैं और उसको इक्वल कर देते हैं p by h के, तो ये रेशियो बन जाता है. ठीक है, तो फंक्शन के अंदर जब आप कोई वैल्यू पुट कर रहे हो तो इस वैल्यू पर ये रेशियो डिपेंड है ना. जब आप कुछ रेशियो निकालोगे तभी आपको इस एंगल पता लगेगा, या फिर अगर एंगल पता है तो आप हो सकता है एक साइड आप बता सके, क्योंकि आप तीन में से दो अननोन तो आपको पता होने चाहिए, तभी आप थर्ड वन निकाल सकते हो. राइट? तो ये आपका बन गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अगेन आई एम टेलिंग टू यू, जब तक कि आप सिर्फ इसको साइन लिख रहे हो तो ये एक फंक्शन है. लेकिन जैसे ही साइन के अंदर आप थीटा डाल के इसको p by h लिखते हो तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाता है. यहाँ पे आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज इवन एंड ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. इवन एंड ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अच्छा, ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज सेड टू बी ऑड फंक्शन इफ f of minus x is equal to minus of fx and symmetric with respect to the origin. ठीक है, वो ये बोल रहे हैं कि अगर आपका fx है इज इक्वल टू कुछ भी है, समथिंग y है आपका, मतलब अगर आप f ऑफ x में x को नेगेटिव पुट कर रहे हो तो जो आपकी वैल्यू आएगी इसकी वो भी आपकी नेगेटिव आनी चाहिए. ओके, आई थिंक इट्स क्लियर. ठीक है,
तो सपोज आई एम सेइंग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, एक बहुत ही बेहतरीन सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपका एक पॉलिनोमियल है, एफ एक्स इज इक्वल टू, या फंक्शन कह लो आप, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, आपने एक्स को 2 पुट किया। ठीक है, तो जब 2 पुट कर रहे हो तो यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 9 दैट इज 4 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 13 हो गया, राइट। तो यहाँ पे जब आप 2 पुट कर रहे हो तो आपका 13 आ रहा है, मींस पॉजिटिव पुट कर रहे हो तो पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन इफ यू आर पुटिंग नेगेटिव तब भी आपका ये 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13 ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर भी आपका 4 होता है, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई -2 कितना हो जाएगा 4। तो इट मींस आप कुछ नेगेटिव पुट कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिल रहा है, सो दैट इज द इवन फंक्शन। तो वो इवन फंक्शन हो जाएगा। लेकिन जब आप नेगेटिव पुट कर रहे हो और आंसर भी आपका नेगेटिव आ रहा है, सो इट मींस दैट इज एन ऑड फंक्शन। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की स्पेशली बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में भी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, व्हेन यू आर पुटिंग समथिंग माइनस एंड यू विल गेट द माइनस रिजल्ट, मींस विच इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है कि दिस इज द कार्टेशियन प्लेन, ये आपको पता है, ये एक्स एक्सिस होता है, वाई, और ये एक्स डैश और ये वाई डैश। लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं तो इसी प्लेन को हम एंगल के हिसाब से देखते हैं, दैट इज 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री एंड अगेन 360 डिग्री, और ये बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो आपकी जो चीजें होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, लेकिन जब आप क्लॉकवाइज चलते हो तो आपकी जो चीजें होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। क्यों होती हैं, चलो देखते हैं इस बात को। सपोज मैं बात कर रही हूं अभी साइन 90 डिग्री की। ठीक है, साइन 90 की, साइन 90 होता है आपका p/h। अगर मैं क्लॉकवाइज नहीं जाके अभी एंटी क्लॉकवाइज चल रही हूँ, एंटी क्लॉकवाइज अगर चल रही हूँ तो आपका मतलब मैं 0 से 90 की तरफ चल रही हूँ, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो भी आपका ये मान के चलते हैं हम। ठीक है, इस वाले एंगल को मान रहे हैं और ये आपकी हाइपोटेन्यूज हो गई यहाँ पे। ठीक है, अभी इस एंगल की बात कर रहे हैं तो मैं अभी इस एंगल के हिसाब से देखती हूँ तो दिस विल बी द परपेंडिकुलर, ये आपकी परपेंडिकुलर हो गई। तो परपेंडिकुलर कैसी है, क्योंकि ये y पॉजिटिव होता है ऊपर की तरफ, तो इट मींस ये आपकी पॉजिटिव है, और हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव रहेगी विद रिस्पेक्ट टू द पाइथागोरस थ्योरम। उस वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज विल बी द लॉन्गेस्ट साइड एंड इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा ना, है ना। लेकिन अगर आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज वाला ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप उल्टा चल रहे हैं, सपोज 0 डिग्री -90 डिग्री, ठीक है, और फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, इस तरह चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं 90 डिग्री माइनस वाले की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो y डैश में है, ये वाला है ना, ये वाला आपका परपेंडिकुलर है, और y डैश नेगेटिव होता है, तो इट मींस आप नेगेटिव कुछ पुट कर रहे हो, और हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होगा, तो आंसर आपका माइनस प्लस हमेशा माइनस ही होता है डिवीजन में। तो इसलिए जब भी आप कुछ माइनस नेगेटिव पुट करते हैं और आंसर आपका माइनस में आ रहा है, सो दैट इज देन ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इवन अगर आप माइनस पुट कर रहे हो और आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, सो इट मींस यू हैव अ इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो 6 फंक्शंस में से कौन से ऑड होते हैं और कौन से इवन होते हैं, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। कॉसाइन और सेकेंड ये आपके इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, कॉसाइन एंड सेकेंड, तो आपका जो कॉस और सेक होता है, कॉस और सेक जो होता है वो इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, और बाकी के जो 4 होते हैं वो ऑड होते हैं। मैं फिर आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आई एम टेकिंग दिस कार्टेशियन प्लेन, ये आपने कार्टेशियन प्लेन लिया है, ठीक है, तो दिस इज 0 डिग्री, 90, 180 और 270 और 360। ये एंटी क्लॉकवाइज जब हम चल रहे हैं, और एक मैं एंगल बना रही हूं व्हेन वी आर मूविंग क्लॉकवाइज। ठीक है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री एंड अगेन 360 डिग्री। अभी आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, ठीक है। तो मैं कॉस की बात करती हूँ, कॉस क्यों इवन है, ठीक है, पहले मैं इसके ले लूंगी, इस वाले पार्ट के लिए। चलो मैं कॉस 90 की बात करती हूँ, कॉस 90 की बात करते हैं, ठीक है। जब एंटी क्लॉकवाइज चल रही हूँ तो cos 90 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब मैं 90 की बात कर रही हूँ तो मैं यहां से लेके ओरिजिन से ही तो चल रही हूँ ना, यहां से यहां तक चली हूँ, और ये हाइपोटेन्यूज हो गई, और इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो बेस ये है आपका, है ना, बेस आपका ये हो गया, तो बेस तो आपका पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन है आपकी, ये एक्स
की तरफ है, एक्स डैश की तरफ नहीं है, ये एक्स डैश है, दिस इज एक्स, तो ये तो पॉजिटिव हुई, है ना। और हाइपोटेन्यूज हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो इट मीन्स आपका जो रिजल्ट है पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, आपका रिजल्ट तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है भाई, जब हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, लेकिन जब हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो cos 90 को देखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 90 आपका यहां पे आएगा जब क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो 0 to 90 चले। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, ये जो बेस है और ये हाइपोटेन्यूस एंगल की बात कर रहे हैं, तो बेस ये होगा। ठीक है, इस बार भी बेस आपका एक्स है, इस बार भी आपका पॉजिटिव एक्स है, तो इट मीन्स ये तो पॉजिटिव है, और हाइपोटेन्यूस भी पॉजिटिव है, तो इट मीन्स पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इट मीन्स आपका कॉस क्लॉकवाइज होने पर भी आपका पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, जब हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मूव करवा रहे हैं तब भी वो आपका पॉजिटिव ही है। सो इट मीन्स इट्स वेरी मच क्लियर कि कॉस जो होता है वो इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक भी आपका इवन ही होगा, और बाकी चार जो है वो आपके क्या होंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। अगर आपको इस पे और एक्स्ट्रा आपको पूछना है, सो यू कैन put me the comment that ma'am, I want more clarity on this. Okay, so moving towards the next part everyone. Now so these are the 6 trigonometric, अच्छा इसको रेशियोज बोलेंगे या फंक्शंस बोलेंगे, यहाँ पे सिर्फ साइन की बात हो रही है, सिर्फ कोसाइन की बात हो रही है, सिर्फ टेंजेंट की बात हो रही है, सिर्फ कोसेक की बात हो रही है, सिर्फ सेक की बात हो रही है, सिर्फ आपकी कॉट की बात हो रही है। इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लेकिन जैसे ही इस साइन के अंदर थीटा लगा के इज इक्वल टू पी बाय एच कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि यहाँ पे आप कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, दो साइड्स का, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, सो ये वेरी मच क्लियर है, क्योंकि साइन जो होता है वो जो साइन होता है वो आपका रेशियो किसका होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। ठीक है, और परपेंडिकुलर को आप ऑपोजिट साइड बोलते हो और बेस को आप एडजेसेंट साइड बोलते हो। ठीक है, इसी तरह से जो कॉस होता है, बस आपको क्या याद रखना है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले, और मम्मी कौन होती है, साइन, और पापा कौन होते हैं, कॉस, और बच्चा कौन होता है, टेन, और इनका रेसिप्रोकल कॉसेक, सेक और कॉट। आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर, इतना जान लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट एवरीवन। सो इन द नेक्स्ट part we'll surely discuss about the Pythagoras theorem, which is very very important for a right angle triangle. तो जहां पे भी आप right angle triangle देखेंगे, you have to use the Pythagoras theorem, so it's very very important. So we'll take in the next video. So if you like this video, please comment what you need more, and please share with others also, and please subscribe my channel to get more. So thank you everyone.